welcome again to our online classes. As you know that we are doing chapter number 3, mineral and power resource. So let's start our topic, mineral and power resource. Uh, so first, I will explain the previous point. In first, according to your NCERT book, we have done mineral and power resources, in which we have discussed the what is the mineral. Mineral, a naturally occurring substance that has a definite chemical composition, is a mineral. Then we have done the types of mineral, in which we have done the two types of mineral. First is metallic and second is non-metallic mineral, and metallic minerals then divided into two types, ferrous and non-ferrous mineral. Next topic, we have discussed the extraction of mineral. So extractions of mineral, process of the extracting minerals, three type: mining, drilling and quarrying. Now after that we have discussed the distribution of mineral, and the Asia, then Europe, North America, and South America, Africa, Australia, Antarctica. The what minerals are majorly found in that areas. Last was topic uses of mineral, कि क्या क्या use होते हैं, and then we have done conservation of mineral. So now today's topic is power resources. The power resources that we have discussed in the conventional resources. Conventional resources means the resources, conventional resources is the energy that are those which have been used for a long time for the firewood. कि जो भी है जो कन्वेंशनल रिसोर्स की एनर्जी दोज विच हैव बीन द कॉमन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबे टाइम से यूज़ हो रही है. इसमें फर्स्ट है आपका फायरवुड. फायरवुड यानी जो जलाने के लिए लकड़ी यूज़ होती है. इट इज़ वाइडली यूज फॉर द कुकिंग एंड हीटिंग. ये हम कल कर चुके थे. उसके बाद आपके बुक में जो है कुछ टेबल्स हैं. ऑयल, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, नेचुरल गैसेस, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज. सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद द टॉपिक कोल. Second, conventional resources. So listen carefully. I'm explaining this topic. So we are discussing about the first topic, coal. Fine, according to your book. Coal, this is the most abundantly found the fossil fuel. It is used as a domestic fuel in the industries such as iron and steel, स्टीम इंजन्स एंड टू बी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. देखिए स्टीम इंजन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में जो यूज़ होता है कोल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर. जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कोल से, उसे क्या कहते हैं? थर्मल पावर. क्या कहते हैं? थर्मल पावर. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर. The coal which we are using today are formed millions of years ago when giant fens and the swamp got buried under the layer of the earth. ये इसको बनने में millions of years रखते हैं. जो बहुत सारी चीज़ें buried हो जाती हैं, दब जाती है ज़मीन के अंदर. उसके बाद हीट होती है जिससे क्या बनता है? कोल. कोल इज़ therefore as a buried sunshine. इसको दूसरा नाम भी दिया गया है. उसका नाम क्या है? बुरीड सनशाइन. देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हमने की है. थर्मल पावर किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी विच जनरेट फ्रॉम कोयल इज़ द थर्मल पावर. देन बुरीड सनशाइन किसे कहते हैं? कोल को. ये चीज़ें याद रखेंगे. Then the leading coal producer of the world are the China, USA, Germany, Russia, South Africa and France. And the coal producing area of India is the रायगंज, झारिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड. यानी झारखंड जो है उसका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. यहाँ पे जो कोल है, वैसे अगर आपको पता हो आयरन स्टील इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? झारखंड में. तो यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हैं. सो आई एम वेरी मच क्लियर about the coal. Now next topic, the next page of your book is petroleum. पेट्रोलियम इज़ द नेक्स्ट कन्वेंशनल रिसोर्सेज. सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वर्ड ओरिजिन की कहाँ से वर्ड आया है ये इसका. देखिए ये यहाँ पर दे रखा है आपकी बुक में. अच्छे से ध्यान से देखिए इसको. द वर्ड पेट्रोलियम इज़ द ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड पेट्रा मीनिंग रॉक एंड ओलियम मीन्स सॉयल. सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल. ये क्या कहते हैं इसको? पेट्रोलियम्स को रॉक ऑयल.
Now starting with the petroleums, petrol that keeps your car running as well as oil that keep your cycle from the squawking. Both began as a thick ब्लैक लिक्विड कॉल पेट्रोलियम. यहाँ देखिए क्या कहा गया है पेट्रोलियम को, ब्लैक लिक्विड. क्या कहा गया है, ब्लैक लिक्विड. और ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. देखिए यहाँ पे मेंशन है जो ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक बहुत असेंशियल रिसोर्सेज है जिसके बिना जो एनर्जी है जो जनरेट नहीं होती है. सो it is found the layer of the rocks and the drill from oil field located of the offshore and coastal area. मैंने आपको बताया था प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग में कि ड्रिलिंग प्रोसेस से इसको निकाला जाता है क्योंकि बहुत नीचे पाया जाता है अंडर द सी बेड. दिस इज सेंड टू द रिफाइनरीज. उसके बाद इसे रिफाइनरीज में भेजा जाता है विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड द प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन. यहाँ पे देखिए इनके नाम याद रखने हैं आपको. ये जो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्लास्टिक, ल्यूब्रिकेंट्स, पेट्रोलियम्स, इट्स ऑल अल्टरनेटिव्स आर द ब्लैक गोल्ड. ये सब किससे बनते हैं, उस पर्टिकुलर क्रूड ऑयल से जो निकाला जाता है. सो पेट्रोलियम इज़ द डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. इसलिए क्या कहा जाता है इसको, ब्लैक गोल्ड. आई थिंक आपको समझ में आ रही है सारी चीज़ें. इट इज़ वेरी वैल्यूएबल, बहुत वैल्यूएबल है इसलिए ब्लैक गोल्ड कहते हैं इसको. द चीफ पेट्रोलियम्स प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर. And the other major producers are USA, Russia, Venezuela and Algeria. The leading producer in India are the Dhanbog in Assam and Bombay High in Mumbai and the deltas of the Krishna and Godavari rivers. So your petroleum is, I think, clear to you. Now next topic is नेचुरल गैस. अब हम क्या डिस्कस करेंगे, नेचुरल गैस. यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. कंप्रेस नेचुरल गैस CNG इज़ अ पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल इज़ द कॉजेज ऑफ पेट्रोलियम एंड डीजल. यहाँ देखिए CNG का नाम सुना है, CNG से कई सारी गाड़ीज़ भी चलती है. ये एक इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है जो पेट्रोलियम जो है जिससे बहुत पोल्यूशन होता है, डीजल से, केरोसिन से बहुत पोल्यूशन होता है, लेकिन CNG एक सब्स्टिट्यूट है. तो हम बात करें नेचुरल गैसेस की. नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद द पेट्रोलियम्स डिपोजिट एंड रिलीज विद क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस. देखिए जब पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है तो उसके साथ नेचुरल गैस जो है वो क्या आती है, बाहर आती है. Fine. It can be used a domestic and industrial fuel. डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों जगह पर यूज़ होता है. रशिया कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. रशिया, नॉर्वे, UK, नीदरलैंड एंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द नेचुरल गैसेस. अब इंडिया की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है. जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन द मुंबई हैव नेचुरल रिसोर्सेज. वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन. यानी ऐसी बहुत ही कम कंट्रीज है जिनके पास अपने खुद की रिजर्वियर्स हैं, किसके, नेचुरल गैसेस के. द शार्प इंक्रीजिंग ऑफ आर कंसप्शंस ऑफ द फ्यूसिल फ्यूल. देखिए कंसप्शंस होता है जो यूज़ करते हैं हम लोग, किसका, इन रिसोर्सेज का जो इनका यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. इट लेड टू देयर डिप्लीशंस ऑफ एट अलार्मिंग रेट. अलार्मिंग रेट यानी कि धीरे धीरे इतने ज़्यादा यूज़ हो चुके हैं कि ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. द टॉक्सिक पल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम द बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो अ कॉजेज ऑफ द कंसर्न. और इन रिसोर्सेज से जो भी पोल्यूशन होता है, गैस रिलीज़ होती है, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए. अनचेक्ड बर्निंग ऑफ द फ्यूसिल फ्यूल इज़ लाइक द अनचेक द ड्रिपिंग टैप विच विल eventually run dry. This has led to the trapping of various non-conventional resources of energy that are cleaner alternatives of the fossil fuel. Fine students, so natural gases में ये CNG का जो है इसको आपको याद रखना है क्या होती है CNG. इसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो क्रूड ऑयल है उसके साथ क्या निकाली जाती है, ये नेचुरल गैस. और बहुत ही कम जो है इसका मतलब बहुत कम जगहों पर ये निकाली जाती है क्रूड ऑयल के साथ. एंड नाउ नेक्स्ट कन्वेंशनल रिसोर्सेज इज़ हाइडल पावर. फाइन. सो आई एम डिस्क्राइबिंग द हाइडल पावर. सबसे पहला यहाँ पे देखिए
एक ब्लॉक है, नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्वे जो है सबसे पहली कंट्री है जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या की गई थी, जनरेट। नाउ हाइडल पावर, रेन वाटर ऑफ रिवर वाटर स्टोर इन द डैम टू मेट फॉल फ्रॉम द हाइट्स। रेन वाटर और रिवर्स के वाटर्स को, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है, वहाँ वाटर को स्टोर किया जाता है। सबको पता है वाटर जो स्टोर किया जाता है उसके बाद उसे हाइट से बहुत फॉल किया जाता है, गिराया जाता है। द फॉलिंग वाटर फ्लो थ्रो पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर द टर्बाइंस ब्लेड्स एंड द प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ डैम। यहाँ देखिए बॉटम ऑफ डैम जो है वहाँ पर इसे प्लेस किया जाता है टर्बाइंस को। इसके बाद दे मूविंग ब्लेड ऑन द टर्न जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ये घूमती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दिस इज़ कॉल्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स वाटर, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, यानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट हो रही है, हाइड्रो वाटर से जनरेट हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फाइन। नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर द इरीग्रेशन। अब देखिए वाटर को फॉल किया, स्टोर किया, पहले उसको फॉल किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, उसके बाद उसी वाटर का यूज़ किस में किया गया, इरीग्रेशन में, यानी कि वो वाटर वेस्ट नहीं जाता है, उस वाटर का यूज़ किस में हो गया, इरीग्रेशन में। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द हाइडल पावर। देखिए कितना होता है, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड, यानी 1/4 से भी ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर से ही आती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इज वर्स द पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन द इंडिया दैट भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन एंड नेक्स्ट इज़ द दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये हैं कुछ, यहाँ पर देखिए डायग्राम भी दे रखा है। एक और चीज़ है यहाँ पर आपकी बुक में, द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर इज द स्कॉटलैंड। जो सबसे पहली साइट पाई गई थी सोलर एंड विंड पावर्स की, जो हम आगे करने वाले हैं, वो कहाँ पर पाई गई थी, स्कॉटलैंड में। ये देखिए ये आपका वाटर जो है रिजर्वियर है, वाटर रिजर्वियर है, यहाँ पर ये जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, ये टरबाइन है और इसी से क्या होता है, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो स्टूडेंट्स, आई एम वेरी मच क्लियर, वी हैव डिस्कस टुडे द कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल discuss the non-conventional resources of the energy. So students, thank you and have a nice day. Keep remembering, and if you have any questions, ask to me.